Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। नमस्कार उदयन, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Benchmark stocks log marginal gains. Sensex climbs to 49,751. Nifty settles at 14,708. Rupee appreciates 4 paisa against the US dollar. And Brent crude prices jump to trade beyond $66 per barrel. शेयर बाजार मामूली बढ़त में रहे। सेंसेक्स 49,751 पर और निफ्टी 14,708 पर हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की मजबूती में और ब्रेंट कच्चा तेल तेजी के साथ $66 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली बढ़त पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.01% की तेजी से 7 अंक बढ़कर 49,751 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.22% की वृद्धि से 32 अंक बढ़कर 14,708 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी से भी बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.98% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.74% की बढ़त दर्ज हुई। The benchmark domestic stocks today closed with marginal gains amid positive global cues. The Sensex gained 7 points or 0.01% to finish almost flat at 49,751. The Nifty also rose 32 points or 0.22% to end at 14,708. The broader market at BSE also climbed, outperforming the Sensex. The BSE mid-cap index surged 0.98%, while the BSE small-cap index appreciated 0.74%. In the Sensex pack, shares of 20 companies climbed, while 10 logged losses. ONGC was the top gainer as it surged 5.6%, followed by IndusInd Bank, which climbed 2.7%. Larsen & Toubro gained 2.4%. SBI rose 1.6% and NTPC added 1.5%. On the other side, Kotak Bank tumbled 3.7%, Maruti declined 1.7% and Bajaj Auto fell 1.4%. HDFC Bank ended 1.3% down, while HDFC and HCL both slipped 1%. In sectoral indices, 16 out of 19 sectors fell. Metal sector gained 3.7% and realty surged 2.9%. Basic materials rose 2.2%, while oil and gas and capital goods both climbed 2%. On the other hand, BankX, finance and telecom fell up to 0.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,659 companies gained while 1,271 declined. Shares of 151 companies remained unchanged. Mr. Ray, slight improvement in the markets today. The Sensex and the Nifty closed almost flat after a straight 5 sessions in which it was falling down. Brett, can we say that it's a small sigh of relief for the investors? Yes, I mean, one should look at it from a point of view of profit booking because it was the markets were just moving without, they weren't even stopping to, catch their breath. So it's a little bit of a profit booking, F&O sort of, expiry issues are there. I mean, the dates were there. Then some of the other information that came in. So that was just basically an excuse to sort of consolidate. You will find that as you get news during the course of the week about the possible passing of the stimulus bill in the U.S. and then a deposition by U.S. Fed chairman.
to the Congress. News like those will come and, give a little bit of a boost to the sentiment again, and we would find some level of forward move again in the markets. Listeners, there's a correction. Now, in sectoral indices, 16 out of the 19 sectors gained. Earlier, we had said that these 16 out of 19 sectors had fallen, but actually 16 out of the 19 sectors gained today. उद्यम, जैसा आप अभी कह रहे थे कि मार्केट ने काइंड ऑफ एक ब्रीदर लिया पिछले 5 दिनों में, कह सकते हैं कि अद्भुत तेजी थी, उसके बाद हमने जो करेक्शन देखी, इसलिए आप उससे ज्यादा चिंतित नहीं हैं, और आज तो खैर फ्लैट रहा है बाजार। और यूएस स्टिमुलस आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। यूएस फेड क्या कहेंगे, उसका एक्सपेक्टेशन भी है बाजार में, उसको लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन है। और हमने बाकी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी वही ट्रेंड देखा है लगभग कि पिछले 2 सप्ताह में एक गिरावट का रुख था। सो क्या आपको एज एन इकोनॉमिस्ट क्या एक्सपेक्टेशन है, अमेरिका में क्या अनाउंसमेंट हो सकती है और किस तरह का उससे इफेक्ट आ सकता है बाजारों पर? देखिए सोनू, एक चीज जो है वो लोगों का कहना है कि स्टिमुलस, अमेरिका में जो स्टिमुलस बिल था, पिछले जो स्टिमुलस है, सारा का सारा पैसा जिनको स्टिमुलस मिला वो खर्चा नहीं करे, वो बचा के रखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उतना कैश स्पेंडिंग में लग जाए, पर मजेदार बात ये है कि लोग उसमें से कुछ लोग जो पैसे रोक के भी रख रहे हैं, उस पैसे को वो इन्वेस्टमेंट में भी लगा रहे हैं, कुछ और चीजों में भी लगा रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा ही स्पेंडिंग के थ्रू एक इकोनॉमी को स्टिमुलस दे, कुछ हिस्सा लोग रिटेन करके भी रख लेंगे, और ये अमाउंट काफी है, और ये तकरीबन सितंबर तक लास्ट कर जाएगा, उसका इफेक्ट यूएस में इतना है। और तब तक उम्मीद ये अमेरिका में ये उम्मीद की जा रही है कि जो वैक्सीनेशन है, तब तकरीबन सारे नहीं तो ज्यादातर लोगों को जो लेना चाहते हैं वो ले चुके होंगे, और बड़े बड़े शहर और जो इकोनॉमिक जहाँ पे एक्टिविटी है वहाँ पे ये फायदेमंद होगा, लोग वापस खोल सकेंगे अपने बिजनेस। एंड सेकंड हाफ में अमेरिका में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ का जंप आने वाला है। अगर ऐसा जंप होता है तो नेचुरली वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बूस्ट मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं अमेरिका टॉप इकोनॉमी है, और हमारे भी जो इकोनॉमिक एफर्ट्स हैं, हमारे जैसे एक्सपोर्ट्स वगैरह है, अमेरिका हमारे लिए बहुत बड़ा बाजार भी है, तो उस लिहाज से भी काफी फायदेमंद रहेगा। उदिन, एक और आपने भी बात कही कि जो पैसा है वो लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट्स में लग रहा है। हम देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस काफी ऊपर जा रहे हैं। कॉपर के प्राइसेस 9 ईयर हाई पे हैं, ऑयल के प्राइसेस प्री कोविड लेवल्स पे पहुंच गए हैं, 1 वर्ष से अधिक के उच्चतम स्तर पर है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है, क्या ये जो मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, उनके लिए एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है, जहां शायद स्टॉक मार्केट्स की तरफ पैसा आना थोड़ा कम हो जाए? सुनो, पैसा इतना ज्यादा है कि वो एसेट को चेज कर रहे हैं। मतलब आप, इट डजेंट मैटर कि कौन सा एसेट है, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जहां पे भी आपको ओवर वैल्यू दिखेगा वो आप दूसरे नए मौके ढूंढेंगे। इसलिए आप पाएंगे कि बिटकॉइन में भी ऊपर जा रहा है, जहां पे भी आपको लगता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वहां जा रहा है। वही बात तेल की, कच्चे तेल की, वो काफी कुछ पीछे जो बढ़ा है, पिछले 7-8 दिन में जो बढ़ा है, वो अमेरिका में जो सप्लाई है, जो टेक्सास फ्रांस में वहां पे जो स्नो स्टॉर्म आया है, उसकी वजह से डिस्ट्रप्शन की वजह से काफी कुछ हुआ है। तो ये कुछ दिनों में ये वापस ये सप्लाई बहाल वहां से जरूर हो जाएगी, और काफी कुछ जो है ये ओपेक प्लस में जो सप्लाई का निर्णय लेंगे, उस हिसाब से वो उन्होंने सप्लाई कट किया ताकि वो प्राइस बूस्ट करे, तो इवेंचुअली प्रोड्यूसर को वॉल्यूम भी चाहिए। तो ये दूसरी बात रही बात आपकी बॉन्ड की, वो एक खतरा जरूर बना, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, क्योंकि अगर बॉन्ड की यील्ड्स इस तरीके से बढ़ते रहे, एट सम पॉइंट वो आपके इक्विटी मार्केट्स को इम्पैक्ट करते हैं। और विशेषज्ञ आपको, हम लोगों को 2013 के बारे में याद दिला रहे हैं, जब फेड ने अपने जो सपोर्ट प्रोग्राम था वो जब विड्रॉ करने लगे, जिसको टेपर ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है अब, तो तब हमने देखा था कि बॉन्ड मार्केट के इफेक्ट की वजह से इक्विटी मार्केट्स में भी असर पड़ गया। तो एट सम पॉइंट इस तरीके से बॉन्ड मार्केट नर्वस रही, तो उसका कंटेजन या उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट में पड़ भी जाता है।
Mr. Day, of course, you're talking about the bond yields rising, and the bond yields are rising not just in India, it's happening in the US, it's happening in the UK. In such a scenario, everybody's eyes are on now RBI. What expectations are from RBI? Because the RBI also is talking about the government has announced, big borrowing in this year's budget. That is also there. So basically, right now in our country, there is almost like a duel going on between the bond market participants and the RBI. Bond market participants, they want a timetable on how the government's borrowing and some of the other things are going to happen, how the bonds are going to. This is a huge amount of securities that is going to be dumped in the market. So they want a timetable, a direction out there, and RBI, while it is saying that it's supporting it, it's not coming out with some kind of a timetable. And RBI also wants to, it seems very clearly, it wants to ensure that there is a certain rate for some of these options, whatever you call it, when government securities are coming. So whenever these options are coming or these things operations are happening, it is looking at a certain interest rate or certain rate for a certain tenure. Now that is where the duel is happening, and one can expect this duel to continue for a while, because that's a posture which RBI has adopted, and that's where it's going. So it's a bit of a discordant note between RBI and the market, and at some point I think it will have to get resolved, or it will get resolved by market and overall forces. तो उदयन, आप जैसे कह रहे हैं कि आरबीआई का इंटरवेंशन जरूरी है और उसमें ज्यादा एक कम्युनिकेशन भी जरूरी है कि क्या बॉन्ड सेल्स का वो रहेगा, बॉन्ड सेल्स या बॉन्ड परचेजेस का उनका जो एक टाइम टेबल होगा। एक और चीज है कि कल जो मिनट्स आए हैं आरबीआई के, उसमें उन्होंने इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन को खासकर एक रिस्क फैक्टर बताया है। सो आपको लगता है कि आरबीआई की जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है वो भी बहुत जरूरी है, कि लिक्विडिटी एक्सेस होने से भी एक इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलता है। सो आपको लगता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट एक बहुत कहें कि बैलेंसिंग एक्ट होने वाला है आरबीआई के लिए? जैसे फंड तो यही है, मतलब फंड ये लगाया जा रहा है, ये मतलब बेट ये लगाया जा रहा है कि हम लिक्विडिटी को, तरलता को बरकरार रखेंगे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और रिकवरी हो। तो बेसिकली दोनों चैलेंज ये है कि आप इतनी जल्दी आप रिकवर करना चाहते हैं कि ताकि जो मुद्रास्फीति क्यों होती है, एक सरल एक्सप्लेनेशन, इसके तो कई एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। एक एक्सप्लेनेशन ये होता है कि आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं और आपके पास सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भौतिक वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, वो कम है, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सिकुड़ी हुई थी, अब उसको इतनी तेजी के साथ बहाल करना पड़ेगा कि वो ये प्रॉब्लम ना है कि बहुत ज्यादा कैश कम जो है सप्लाई को चेज कर रही है। तो ये इसमें सिर्फ आरबीआई या सरकार फिस्कल पॉलिसी का ही रोल नहीं है, कितना बढ़िया तरीके से हम वैक्सीनेट करके इस पैंडेमिक को कंट्रोल करके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहाल करेंगे और ग्रोथ को वापस लाएंगे। ये सिर्फ एक जो आपने इसका जिक्र किया वो पजल का एक ही पीस है, बाकी जो पीसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो पूरा नहीं होगा तो वो लिक्विड इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का खतरा तो बरकरार है, बना रहेगा। तो ये करेक्ट डायग्नोसिस है। एक और चीज है, नोम्यूरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स, जो ये दिखाता है कि बिजनेस कैसे रिज्यूम हो रहा है, किस पेस पे रिज्यूम हो रहा है। 21 फरवरी को जो सप्ताह खत्म हुआ वो 99.3 पे पहुंच गया। सो बिजनेस एक्टिविटी, इससे इंडिकेशन मिलता है ऑलमोस्ट एट प्री कोविड लेवल है। जो कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं वो भी उत्साहजनक बताए जा रहे हैं। सो आगे चलकर आपको बाजार के क्या प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं और आपकी ब्रॉडली एडवाइस क्या होगी इन्वेस्टर्स के लिए? बाजार में लिस्टेड कंपनी जो हैं वो आपके जो रजिस्टर्ड कंपनीज यूनिवर्स में सबसे ताकतवर कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, वो ट्रेड हो रहे हैं, तो उनकी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्ट्रांग थी, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे उनकी रेजिलियंस बढ़ी है, उन्होंने अपने कॉस्ट कटिंग किए है, टेक्नोलॉजी लगाया है, एफिशिएंट हो गए हैं, उन्होंने लोगों को मतलब मैन पावर रैशनलाइज किया है।
तो वो उसका फायदा, जैसे जैसे आपकी ओपनिंग होती चली जाएगी इकोनॉमी में, लोग पे हाइक्स मिलेगा उसका फोरकास्ट किया जा रहा है, तो वो फायदा उनको आएगा और वो आपको आपके स्टॉक उनकी अर्निंग्स और स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। पर जो सेक्टर्स आपके खुले नहीं है, जो ज्यादा प्रेशर में है, उनका क्या हाल होने वाला है, वो ओवरऑल आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको डिटरमिन करेगा। तो मैं 3 चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे एयरलाइन हो गया, एजुकेशनल सर्विस हो, जैसे हम जानते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस प्राइवेट या गवर्नमेंट, ये सब मोर और लेस लिम्बो में है, इनको खोलना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें हैं, स्मॉल जो यूनिट्स हैं जो इम्पैक्ट हुई हैं और जो लोन या जो प्रेशर में है, तो ये जो चीजें स्टॉक मार्केट इंडिसेस इन चीजों को कैप्चर नहीं करती हैं और नहीं कर पाएंगी। तो इनको एक इकोनॉमी का एक हिस्सा आगे तो बढ़ जाएगा, पर दूसरे हिस्से को कितने बढ़िया तरीके से हम उनको क्वेश्चन करेंगे, वापस पटरी पर लाएंगे, इस पे हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर हो जाएगा। क्योंकि वो उपभोक्ता है, उनके पास अगर इनकम नहीं आएगा तो वो कंजम्पशन उनका कैसे आगे बढ़ेगा। और इंडिया मोर और लेस कंजम्पशन स्टोरी है, तो कंजम्पशन को बहाल करना पड़ेगा उन लोगों का भी कंजम्पशन जिन लोग हिट हुए हैं। Mr. Ray, we've been talking about the various sectoral indices. Of course, the banking sector is one sector where we have seen a fall in the share prices for the last couple of weeks. What are the prospects going forward, do you think, for the banking sector? Well, one of the great things that have happened in the past couple of weeks is the results that have come from SBI. Now, SBI's commentary, I think, was something which gave the markets and all other observers a lot of buoyancy, a lot of hope, because they're talking about the quality of their assets improving. Now, SBI is a front runner in the country, so if it is, and also it's a PSU front runner. So if it is talking about something like that, then it's giving us the hope that if it is SBI is like looking at the future with such great positivity, then there are other banks, especially PSU banks, which play a huge role out there. They of course are would be in a better shape. RBI, of course, the government has announced a whole slew of steps regarding NPSs. The private banks have done a lot of provisioning for some of the stress that might have happened. So overall, over a period of time, say beyond maybe in the second half, the things might look much better than what they're looking now. But having said that, what the whole thing, how the picture is going to emerge after March 31st, when some of these deadlines get over, some of these adjustments and some of the other things that are allowed, that is something that is definitely worth seeing how they sort of deal with that period getting over. And my sense is that there has been a lot of preparation has been made, and the way we are shaping, we should be able to see that period through. And overall, as the economy gets better and some of the other things like bad banks and some of the other things happen, the financial sector, especially the banks, will be in a position to facilitate that reclaiming of growth. So that is what the government and RBI are trying to do. और उदयन, अगर हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर्स जैसे मेटल, जिसमें हम बहुत ऑफ लेट देख रहे हैं उछाल, या ऑयल एंड गैस रिलेटेड सेक्टर्स, या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स, बजट जो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट आया है उसके बल पर आपको लगता है कि ये सेक्टर्स शायद आगे चलकर सनराइज सेक्टर्स रह सकते हैं? देखिए, जरूर करेंगे। सबसे पहला जो काम हमारे देश के लिए होगा कि हमारी जो आइडल कैपेसिटी है, जो मनमानी 100 यूनिट बना सकते हैं, और हम पहले बिफोर कोविड की पैंडेमिक में हम 75 या 80 पे थे, तो हम उस कैपेसिटी को पूरा यूज करें ताकि नया इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट हो सके। कई जगह में तो नया इन्वेस्टमेंट कई कंपनियों के केस में तो वो तो स्टार्ट होगा, पर एक मास लेवल पे अगर इन्वेस्टमेंट साइकिल स्टार्ट होता है वो बेहतर होगा। और उसको प्रीसीड करने के लिए इंफ्रा में जो एक्टिविटी है उसका होना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी जो न्यू इन्वेस्टमेंट साइकिल इंफ्रा के साइकिल को प्रीसीड नहीं कर सकता। आपको सड़कें होनी चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम होना चाहिए, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए इंफ्रा का रोल जो आप जिक्र कर रहे हैं वो उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और उसमें गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसमें इंटरवीन करके एक्ट करेगा ताकि वो किक ऑफ कर ले, तो ताकि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो वापस आए।
Moving on, the rupee today appreciated 4 paisa to settle at 72 rupees and 47 paisa against the US dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, also gained 0.14% to 90.14 in intraday trade. उद्यम रुपए में हम देख रहे हैं लगातार एक मजबूती या स्थिरता बनी हुई है। कल भी इनफैक्ट रुपए में तेजी आई थी जबकि बाजार 1000 अंकों से अधिक गिरा था। करेंसी से रिलेटेड एक जो डेवलपमेंट है उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। जैनेट येलन ने न्यूज आई है कि उन्होंने डिजिटल डॉलर के इस्तेमाल पर रिसर्च को बैक किया है। सो आपको लगता है कि डिजिटल डॉलर या और कोई जो करेंसी है वो डिजिटल रूप में शायद आगे चलकर एक सच्चाई बन सकती है? बिकॉज क्रिप्टो करेंसी को डेफिनेटली सारे सेंट्रल बैंक्स बैक नहीं करते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और ये तरफ चारों तरफ हर देश पूरी तरह हमारे यहाँ पे आरबीआई भी कर रहा है। सरकार इसको लेके कानून वगैरह लाने वाली है। और आप जैसे कि आप जानते होंगे कि चाइना में डिजिटल करेंसी की तरफ जो इनिशिएटिव है वो और भी आगे बढ़ गए हैं और उसको वहाँ पे डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से चाइना अग्रणीय देशों में से है जो इसमें इनिशिएटिव को बहुत आगे बढ़ा के लेती हैं। तो कोई भी कंट्री अपनी खुद की करेंसी को अंडरमाइन करने नहीं दे सकता। इसलिए जो प्राइवेट जो डिजिटल करेंसी है उनके जो दिन है मेरे हिसाब से उनके फ्यूचर में एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेड स्पेस है, क्योंकि हर कंट्री एक डिजिटल करेंसी डेफिनेटली लाने वाली है। So in that context, do you think the Indian government has proposed a law that you have just, you were speaking about? So it's a good thing because it's again a very speculative medium for, so bringing in a law to regulate trading in any form of digital currency or cryptocurrency is a good step. No, see, the question is, if you are trading in that, the biggest concern is, suppose you have a bad time, if you're holding some money or some value. Why would people hold a digital currency? Because they think it's a good store of value. Why do people buy gold? Because they think it's a better store of value than they say currency. Why do we hold a certain investment? Because we think it's a store of value. So now the question is, if there's a loss of store of value, now where does an aggrieved person go to? Absolutely. Now, how is the protection being done? And that is what RBI and the government are talking about. If things go wrong with their head south, then if we have our own digital currency or world over there are authorized digital currency, then you know where to go. Here we don't know where to go and how we will bring any aggrieved party, give them justice. So these are some of the issues. There are many other issues apart from that. But these are some of the things that सिक्योरिटी इज द मेन इशू। जी, अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अमेरिका ने सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर बढ़ने यानी यील्ड्स बढ़ने और मुद्रास्फीति की संभावना से अमेरिकी टेक कंपनियों में आई भारी गिरावट के एक दिन बाद आर्थिक वृद्धि से जुड़ी बाजार की उम्मीदें बढ़ने के बीच एशियाई शेयर बाजारों में 2 सप्ताह के न्यूनतम स्तरों के बाद फिर तेजी लौट आई। हांगकांग का हैंगसेंग 1% बढ़ गया, जापान का निक्केई सूचकांक 0.5% की वृद्धि में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% की बढ़त में रहा। लेकिन दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.3% के नुकसान में रहा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% की गिरावट में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां के बाजार शुरुआती तेजी गंवा चुके थे। लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक दोनों 0.4% तक की गिरावट पर थे और जर्मनी के डैक्स में 1.3% की गिरावट चल रही थी। Moving on to the U.S. markets, the S&P 500 and Nasdaq closed lower yesterday as climbing treasury yields and prospects of rising inflation triggered valuation concerns, hitting shares of high-flying growth companies. The Dow Jones ended 0.1% up, while the S&P 500 fell 0.7% and the Nasdaq Composite Index plunged 2.5%. क्या कहेंगे आप, ये जो ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रही हैं या कहें कि इन्फ्लेशन बढ़ने की एक प्रोस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के प्रोस्पेक्ट्स वहां दिखाई दे रहे हैं, उससे क्या जो एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उनका आकर्षण हमारे बाजार की तरफ कम हो सकता है? किस तरह से अफेक्ट कर सकता है उनके फ्लो को? ये खतरा तो जरूर बना रहेगा, क्योंकि अगर वहां पे
यूएस एक लोअर रिस्क मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा कंट्री जहाँ पे डॉलर डिनोमिनेटेड ही इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे तो आपको करेंसी रिस्क हो ही नहीं रहा कि तो वो तो नेचुरली वो बेहतर इन्वेस्टमेंट बन सकता है। पर इमीडिएटली जैसा कि हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रक्रिया है, जो कंडीशन है वो लीनियर रूप से नहीं चलता, मौसम की तरह है, कभी धूप कभी छांव कभी बादल घिर आते हैं। तो वो जैसे स्ट्रेट लाइन में हमें तो लगता है कि एकदम से बॉन्ड डंप हो रहे हैं और उसकी वजह से यील्ड बढ़ जाएगा, एकदम से मार्केट में कुछ वो बहुत जबरदस्त कुछ कैटेक्लिज्म आ जाएगा या इन्फ्लेशन इमीडिएटली आ जाएगी। वो उतना स्ट्रेट रिजल्ट शायद ना हो, कुछ तीसरा या चौथा विकल्प भी निकल सकता है, बीच में से सिचुएशन आ सकती है। तो पर इसके बारे में ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, ये खतरा जरूर है कि वहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो पैसा काफी कुछ रश वहाँ पे हो गया या वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया इस वजह से इक्विटी मार्केट्स में इम्पैक्ट हो गया, लोगों को वहाँ से कॉन्फिडेंस कम हो गया। Oil prices today jumped amid optimism over COVID-19 vaccine rollouts and lower output as U.S. supplies were slow to return to previous levels after a deep freeze in Texas shut in crude production last week. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $66.60 per barrel, while WTI crude prices were around $62.10 per barrel. Mr. Ray, we were talking about, the OPEC plus countries. You just mentioned earlier in the program that they have voluntarily put a cut on their production. Now, there is a meeting next week. All eyes are on that meeting. And given that oil prices have reached the previous, their previous level, high levels, how much of a pressure is there on the government, maybe to cut down on the exercise duty to ease the life of the common man? I think there will be, because, but one needs to look at it. I mean, if you look at it purely from an economic standpoint, what options did the governments have during the lockdown period? Where would they have got the money from? They needed to, incur. Government goes on, whether economic activity is happening or not, the government needs to provide all the basic services to its citizens. Where would have the money come from? So there was a bit of a compulsion. Why? There was a huge amount of compulsion to earn the money from petroleum products. And now when things might actually impact the economic growth, the government obviously will have to find out a way by which they is really providing. Otherwise, the economic recovery that you are wanting to get, it might just come in the way of that. एंड ब्रीफली ईरान और वेनेजुएला से भी रिज्यूम करने की बात हो रही है, चीपर इंपोर्ट्स, नाउ दैट यूएस का जो एक वो था खत्म हो गया है रिस्ट्रिक्शन, सो उससे भी आपको लगता है कि सिचुएशन थोड़ी ईज होगी? बिल्कुल, क्योंकि वो कंट्रीज दोनों ही डेस्परेट होंगी और अगर हमें वहां से मिलता है तो बेहतर है। हमने इनफैक्ट आज तो खबर भी आई है कि हम यूएस से जो हम ले रहे थे, हमारी जो सप्लाई आ रही थी वो काफी ऊपर चली गई। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाता है, थोड़ा सा हमारे लिए ईरान से अगर सप्लाई हमारा ऑगमेंट होता है हमारे लिए बहुत फायदेमंद, क्योंकि वो पास है। जी, चलते चलते अब सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप सोने के घरेलू मूल्यों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध के लिए सोने का वायदा मूल्य 30 रुपए बढ़कर 46,930 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, लेकिन चांदी मार्च अनुबंध के लिए 160 रुपए सस्ती होकर 70,270 रुपए प्रति किलो पर आ गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,808.40 प्रति आउंस पर था और चांदी भी बढ़कर $28.10 प्रति आउंस पर थी। समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उदयन आपका शामिल होने के लिए। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark stocks log marginal gains. Sensex climbs to 49,751. Nifty settles at 14,708. Rupee appreciates 4 paisa against the US dollar. And Brent crude prices jump to trade beyond $66 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Join us tomorrow at 3 p.m. for Money Matters. Till then, goodbye. Market Mantra.